عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاری. حاضرین، سامعین، معزز خواتین، آج کے خطبے میں انشاءاللہ میں وطن اور اہل وطن کی محبت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. محبت جس کا تعلق دل سے ہے، محبت کا تعلق، محبت ناپنے کے لیے کائنات کے اندر کسی سائنٹسٹ نے آج تک کوئی پیمانہ، کوئی آلہ، کوئی اوزار، کوئی میزان نہیں بنا پایا کہ بھائی بخار کا پیمانہ ہے، ہوا تک ناپنے کا پیمانہ بن گیا. لیکن محبت ناپنے کے لیے کائنات میں کوئی پیمانہ ابھی تک نہیں بنا کہ ذرا ناپ لے اور بھاپ لے ہم اس شخص کے اندر فلاں کے تعلق سے محبت کتنی ہے. کوئی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے جس سے ناپا جائے. اسی طریقے سے حب الوطنی، دیش بھکتی یا اپنے وطن سے محبت، اہل وطن سے محبت بھی ناپنے کا دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں بنا ہے. اس لیے ہم اور آپ اپنے طور پر دیش بھکتی ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک میزان طے کریں، کوئی ایک پیمانہ متعین کریں اور اس کو لوگوں میں پاور کرائیں، لوگوں میں دکھلائیں کہ ہاں بھائی یہ عمل کرو گے تو دیش بھکت کہلاؤ گے. غلط ہے، نہیں ہو سکتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ظاہر بسا اوقات لوگوں کا کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے. دیش بھکتی کا صرف دعویٰ ہے لیکن دیش بھکت ہے نہیں آدمی. منافق، بار بار میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. منافق جو ہے اسلام بھکتی کے دعوے دار تھے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، حج، عمرہ، سارے اعمال، غزوات میں جانا، سارے اعمال انجام دیتے بظاہر. یعنی ظاہر ان کا بالکل 99% 100% ان کا دکھ رہا تھا کہ ہاں بھائی اسلام کے فالوورز ہیں، وہ اسلام بھکتی میں بڑے آگے تھے. لیکن ہائے یقینی معنوں میں ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی اللہ کی، نہ رسول کی، نہ اسلام کی، نہ قرآن کی. تو جب تک آپ کے دل میں محبت نہیں ہوگی اور دل کے محبت ناپنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، اس لیے چاہے یوگی، چاہے مودی، چاہے کوئی اور قانون بنائے، جھنڈا پھہراؤ اس سے دیش بھکتی ثابت ہوگی، راشٹر گان گاؤ اس سے دیش بھکتی ثابت ہوگی، کوئی پیمانہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہی گا رہے ہیں. بات تمہید میں گزر جائے گی. دیکھیے آپ قرآن پاک کی میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ توبہ کی ہے. آپ اس کو بغور اس کا ترجمہ سنیں، اس کے بعد میں اس کو ذہن میں آپ رکھیں، انشاءاللہ بات زیادہ سمجھ میں آئے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساجد ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ
سورہ توبہ کی 24 نمبر آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے, آپ فرما دیجیے, اگر آپ کے باپ دادا, باپ میں باپ دادا سب شامل ہیں, نانا, وہ ابناؤکم آپ کے بیٹے, وہ اخوانکم آپ کے بھائی, وہ ازواجکم آپ کی بیویاں, وہ عشیرتکم اور آپ کے رشتے دار, اور وہ مال جن کی کمی سے تم ڈرتے ہو, بھائی مال خرچ کرے گا آدمی ڈر جائے گا, وہ تجارت تخشون کسادہا, اور وہ تجارت جس کے گر جانے سے, جس کو نقصان سے تم لوگ خوف کھاتے ہو, ڈرتے ہو, وہ مساکن ترضونہا, اور وہ مکان, وہ مساکن, وہ حویلیاں, وہ وطن جہاں تم رہتے ہو. مساکن میں ملک بھی شامل ہے, صوبہ بھی شامل ہے, ضلع بھی شامل ہے, آپ کا گھر بھی شامل ہے, آپ کے فلیٹ اور مکانات, ساری چیزیں شامل ہیں. یعنی وہ وطن جس سے تم محبت کرتے ہو, جس سے تم راضی ہو, وہ مکان اور حویلیاں جنہیں تم دیکھ کر کے خوش ہوتے ہو. اچھا بھائی, احب الیکم من اللہ ورسولہ, یہ 8 چیزیں ہیں سورہ توبہ میں, آپ کھول کر کے دیکھنا, اسی کی تشریح کروں گا, وقت پورا ہو جائے گا اور بات اپنی رکھ نہیں پاؤں گا میں. 8 چیزیں ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں جا کر کے دیکھنا. یہ 8 چیزیں یا اس کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز, احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر آپ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں یہ چیزیں, فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, تو آپ اس وقت کا انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں بخشتا. تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے ملک ہو, چاہے ماں باپ ہوں, تجارت ہو, مکانات ہو, زمین جائیداد ہوں, رشتہ دار ہوں, اعزا اقارب ہوں, کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ رسول سے اگر زیادہ محبت آپ نے کیا یا محبت کرنے کا اظہار کیا, تو آپ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے اسلام بھکت بننا چاہیے. اسلام بھکت بن جاؤ گے, دیش بھکتی آپ کے رگو ریشے میں دوڑے گی. ہر اسلام بھکت دیش بھکت ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن صرف دیش بھکتی کا دعویٰ کرنے والا اسلام بھکت نہیں ہوتا, ہے کنفرم بات ہے. بہت ساری اس دھرتی پر, انڈیا کے سرزمین پر بہت سارے لوگ زندگی گزارنے والے ہیں, اسلام کو نہیں مانتے, تو اسلام بھکت تو ہوئے ہی نہیں. لیکن جتنے مسلمان ہیں, تمام کے تمام مسلمان یقینی معنوں میں اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو, ورنہ دیش بھکت ہوتا ہی ہوتا ہے. دیش بھکت وہ ہوتا ہی ہوتا ہے. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, اس میں کچھ الٹ پھیر ہو گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, اس طرح سے الفاظ ہیں. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ چیزوں کو معبود بناتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ, وہ لوگ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, ایمان والے, ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ سخت, مضبوط اور پختہ ہوتی ہے. یا اس آیت سے کیا پتا چلا کہ ہم کو اور آپ کو, دیکھیے یہ حب الوطنی جو ہے بڑی اچھی چیز ہے. وقت کا تقاضا ہے کہ وقت پڑے تو اظہار بھی کریں, لیکن صرف اظہار سے کام چلنے والا نہیں, دل میں ہونا چاہیے. تو اس آیت سے بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو معبودان باطلا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں, اور بہت سارے اسی انڈیا کی سرزمین پر کہتے ہیں وندے ماترم بولو, دھرتی ماتا بولو, اس کی پوجا کرتے ہیں. تو حب الوطنی میں اگر آپ غلو کر گئے تو مشرک بن جاؤ گے. اس لیے ایمان کو بچا کر کے محبت کرنی ہے. ہمیں محبت, ہمیں حب الوطنی کا اظہار بھی کرنا ہے, وطن سے محبت بھی کرنی ہے, اہل وطن سے ہمیں لگاؤ بھی ہے, اور اس لگاؤ کا ہم اظہار بھی کریں گے, لیکن قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے نہیں. پھر وہی بات, اسلام بھکت بن جاؤ, دیش بھکتی آپ کے رگو ریشے میں دوڑے گی, لیکن صرف دیش بھکت بننے کی کوشش کرو گے تو اسلام چلا جائے گا. اس لیے دونوں چیزوں کو بہت, جب اگر آپ حب الوطنی میں زیادہ بڑھیں گے اور کفار کے نقال بن جائیں گے,
یا جیسی उनकी ख्वाहिश है, जैसी उनकी तमन्नाएं हैं, जो वो चाहते हैं उस धुर पर और उस रास्ते और उस पंथ पर अगर चल पड़े तो आप याद रखो कहीं ऐसा ना हो कि धरती अम्मा बोल करके इनकी पूजा करना शुरू कर दो तो अल्लाह रसूल चले जाए, मुशरिक बन जाओ। अगर धरती माँ बोल के पूजा किए या आप सर झुकाए तो बन गए मुशरिक। आप धरती अम्मा या कोई बात है, आप गए सर झुकाए किसी मामले में, आप मुशरिक बन जाओगे। तो हमें वो मोहब्बत करनी है कि हमारी मोहब्बत, देखिए अब क्या खुलासा ये पता चला कि अल्लाह रसूल के बतलाए हुए कवानीन के अंडर में रह करके हम जितनी चाहे मोहब्बत करें वतन और अहले वतन से, लेकिन उससे हट करके ये अल्लाह रसूल के नजदीक मबगूज है, ये इस्लाम के नजर में नापसंदीदा है। इसलिए इस चीज को आप अपने जहन में रखें। एक चीज मैं सबसे पहले बता दूं, हो सकता है छूट जाए मेरे भाई, आखिर हम कब तक हुब्बुल वतनी का इजहार करते रहेंगे? हम और आप आए दिन इजहार करते हैं और ऐसे वैसे इजहार नहीं करते हैं। दीनी जामियात, वो निस्मा जहां बच्चियों को कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पढ़ाया जाता है, कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती है, वहां अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना की सीरत तैयबा उनके सामने पेश किया जाता है, लेकिन उन निस्मा में भी ठुमके लगवाए जाते हैं। ये कौन सी हुब्बुल वतन? ठुमके से कौन सा मोहब्बत साबित हो रहा है भाई? अगर कोई लड़की किसी गीत और संगीत पर, चाहे देशभक्ति वाली ही संगीत हो, ठुमका लगाएगी तो देशभक्ति साबित होगा, और अगर ठुमका नहीं लगाएगी तो देशभक्ति साबित नहीं होगा। ये कौन सा पैमाना है भाई? ये तो पैमाना दीन दुनिया अकल नकल हर एतबार से फेल है। दीनी मदारिस और जामियात में वीडियो आ रहे हैं, आप देखते भी होंगे, ऐसा ऐसा एक्शन, बालिग लड़की है, 18-20 साल की लड़की है और 10-10 12-12 लड़कियां हैं, स्टेज पर स्टेज सजाया जाता है और बेहतरीन अंदाजे में उनको नचवाया जाता है, उनसे डांस करवाया जाता है और उनको देशभक्ति के साथ साथ हिंदी फिल्मों का भी गाना गवाया जाता है और उस पर उन्हें ठुमके और डांस करवाया जाता है। ये मोदी ने कहीं मजबूर तो किया नहीं निस्मा वालों की, आप डांस करवाओगे तो हुब्बुल वतनी का इजहार होगा, वरना नहीं भाई। ये तो कहीं नहीं है, झंडा की बात है कि झंडा फहराना मदरसे में जरूर, तो इससे तो कोई दिक्कत और प्रॉब्लम की बात नहीं कि झंडा फहराओ। चलिए हम फहरा करके हुब्बुल वतनी का इजहार कर देंगे, हालांकि कोई पक्की बात नहीं है कि जो झंडा फहराएगा वो मोहब्बत करने वाला ही होगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। जामियात में देखा जाता है, नौजवान लड़के हैं, बच्चे हैं, इदारे हैं, मदारिस, वहां हुब्बुल वतनी का गीत एक होता है बगैर सारंगी के गाना और एक होता है डीजे के साथ भी बजा दिया जाता है। इससे कहाँ पता चलता है कि आप जब डीजे और बाजा और गाजा के साथ बजाओगे तब आपका हुब्बुल वतनी साबित होगा, वरना नहीं। अच्छा, मैंने क्या कहा है, कब तक हम और आप हुब्बुल वतनी का इजहार करते रहेंगे? क्या झंडा फहराने से, हलवा पूड़ी और सब्जी खिलाने से हुब्बुल वतनी का इजहार हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो मेरे भाई बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मैं आपके सामने मिसाल दे रहा हूं। अभी मैं ऊपर देख रहा था, जलालुद्दीन कासमी एक मायनाज शख्सियत है उनकी इस इंडिया की सरजमीन पर, वो अपनी तकरीर में बयान कर रहे थे कि इस इंडिया की सरजमीन पर डॉक्टर ताराचंद का कहना है कि देवबंदी और बरेलवी और शिया इनको बालाए ताक रख करके सिर्फ अहले हदीसों की, उनकी तहकीक है, सिर्फ अहले हदीसों की 5 लाख जाने गई हैं आजादी हिंद। कितनी भाई? सिर्फ अहले हदीसों की 5 लाख जाने गई हैं आजादी हिंद में। उन्होंने तो जान गंवा दी और आज तक आपको साबित करना पड़ रहा है कि आप देशभक्त हो या नहीं हो। बादशाह जफर कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, भूखा रखा गया। 3 दिन के बाद भूख से जब बेताब हुए, इन्होंने खाना मांगा कि लाइए कुछ ग़िज़ा दे दीजिए, कुछ खा पी ले, तो इनके बेटे को ज़िबह किया गया, काट दिया गया और ज़िबह कर देने के बाद में बेटे का कलेजा भून करके ला करके बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह 3 दिन भूखा रखा गया, खाना मांगने पर उसके बेटे का कलेजा दिया गया। ये इस हद तक जो है कुर्बानी दी है इस मुल्क में मुसलमानों ने, और उसके बाद में हम और आप हलवा पूड़ी से देशभक्ति साबित करने पर तुले हुए हैं। हो ही नहीं पाएगा भाई, कहां से हलवा पूड़ी से काम चलने वाला है?
हलवा पूरी सब्जी से आप देशभक्ति कहाँ साबित करोगे? कहाँ मोदी ने कहा कि हलवा पूरी सब्जी खिलाओ उसके बाद में तब देशभक्ति साबित होगी? ऐसा तो कोई कानून बनाया नहीं है। तो हलवा पूरी से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सियालकोट या कहीं ये मुलाकात किसी शख्स से करने गए, तो वहां उन्होंने जिक्र किया, फिर मैं बता रहा हूं, दीगर मसलक वालों को छोड़कर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, सादिकपुर में गालिबन, कि अहले हदीसों की कुर्बानी को जो जंगे आजादी में इन्होंने पेश किया है, जितनी जानें इन्होंने दी हैं, एक तरफ रख दिया जाए और बौद्धिस्ट, सिख, हिंदू और तमाम लोगों की कुर्बानी को एक तरफ रख दिया जाए, तो अहले हदीस जो कहलवाने वाले इस इंडिया के सरजमीन पर हैं, उनका वजन, उनका मीजान भारी हो जाएगा। और हम और आप मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, हम रोटी और पूड़ी पर और हलवा पर देशभक्ति साबित करने पर तुले हुए हैं कि जब तक हलवा पूड़ी खिलाएगी तो देशभक्ति साबित होगी। मेरे भाई तब तक साबित करते रहोगे, इसलिए हमें साबित करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम भक्त बन जाओ, हमारे रगो रेशे में देशभक्ति शामिल है। हम मुसलमान इस धरती पर बन करके जितनी चाहे कुर्बानियां पेश करेंगे। और कितने दूर अंदेश थे वो हमारे उलमा जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया था, वरना जिहाद ओरिजिनल वाला एक ही है, एलाए कलमतुल्लाह की खातिर, अल्लाह तबारक व तआला की कलमे की खातिर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के गलबे की खातिर ही सिर्फ जिहाद ओरिजिनल वाला यही है। लेकिन वो कितने दानिश्वर और अक्लमंद थे कि उन्होंने गौर किया। और आपको पता होना चाहिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, मन कुतिल दून इर्ज़िही फहुव शहीद, जो अपनी इज्जत के दिफा में मारा जाए वो शहीद है। मन कुतिल दून मालिही फहुव शहीद, जो अपने माल के दिफा में मारा जाए वो शहीद है। तो अंग्रेजों ने हमारी जमीन, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे मुल्क, हमारे वतन, हमारे हिंदुस्तान में कब्जा जमा रखे थे। कहा जब एक गुलाम, अगर कोई किसी का गुलाम बन जाए, उसको आजाद करवाने का इतना बड़ा अज्र है कि इस्लाम में उभारा है। और आज दुनिया में कहीं गुलाम इस्लामिक तरीके से कोई गुलाम मिलने वाला नहीं है। इस तरह से इस्लाम ने उभारा कि कोई गुलाम बनाता ही नहीं है और कोई गुलाम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस इस्लाम ने एक गुलाम आजाद करने के लिए ज़कात का फंड देकर के वहां से आजाद करवाओ, और पूरा मुल्क अगर गुलाम बना हुआ है तो उसको आजाद करवाने का कितना बड़ा अज्र होगा भाई। कितने दूर अंदेश थे कि जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया कि अंग्रेजों को मारो, भगाओ, जो कुछ भी करना पड़े, अदावत करो, बगावत करो, नारे लगाओ और उसके अलावा तहरीकें चलाओ। बिलाखिर 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम और आप आए दिन देशभक्ति के साबित करने पर लगे हुए हैं, तुले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम साबित नहीं कर पा रहे हैं, या और वो लोग मानने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों से इतने बदजन है। अब आप देख लीजिए मेरे भाई, मैंने बता दी कि मोहब्बत का ताल्लुक वतन से है। वतन की मोहब्बत में गुलू जो है, मैंने ये भी बता दिया कि बसा औकात आपको मुशरिक बना देगी। तो इतना ज्यादा हमें गुलू भी नहीं करना है कि हम कहीं शिर्क के दायरे तक ना पहुंच जाएं। और आप देख लीजिए मेरे भाई, वतन, हमारा जो वतन है, वतन दो तरह का होता है। एक होता है दारुल कुफ्र, एक होता है दारुल ईमान। यानी दुनिया में जो लोग कहीं रहने बसने वाले हैं, तो वो दो तरह के लोग हैं। या तो दारुल कुफ्र में होंगे, यानी जहां काफिरों का गलबा होगा, काफिरों की हुकूमत होगी, उसमें वहां रहने वाले होंगे। और एक होता है दारुल ईमान। दारुल ईमान का तो कायदा ज़ाब्ता इस्लामी के हिसाब से होना चाहिए, वो तो मामला खत्म। दारुल कुफ्र में अगर कोई शख्स रह रहा है तो वहां हुब्बुल वतनी का इजहार कैसे करे, और क्या वो दारुल कुफ्र में रहते हुए वतन से मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए। और वतन की मोहब्बत मैंने बता दिया, हमारी ज़मीर, खमीर, और ये फितरती चीजें फितरत में शामिल है। वतन की मोहब्बत ये फितरत में शामिल है। जो आदमी अगर कहीं चल रहा है, किसी दरख्त के नीचे आराम कर लेता है ना, तो जब कभी वो गुजरेगा तो याद करेगा, बताएगा, मौलाना साहब हम जब कभी पिछले बार आए थे तो हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ा आराम किए थे। किसी होटल में जाकर के नाश्ता कर ले, यहाँ से लखनऊ चला जाए, आगरा एक्सप्रेस पर जाए और कहीं जाकर के नाश्ता कर ले, तो वहां बताएगा कि उस बार आए थे तो हम लोग यहाँ रुके थे। इतनी मोहब्बत है। तो आदमी को अपनी जाए पैदाइश से, जहां पैदा होता है, जिस मुल्क में रहता है, उससे मोहब्बत होती है।
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक से आता है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे बाहर से और मदीने में जब दाखिल होते तो जब वहाँ के दरो दीवार नजर आते तो अपने जानवर को दौड़ा देते, पेड़ लगाते कि जरा तेज चल, मोहब्बत गालिब आ जाती। आप जब आप अपने वतन में जाते, अपने घर जाते हैं यहाँ से दिल्ली से, या जो दिल्ली में रहने वाले हैं अपने घर जाते तो बड़ी खुशी होती है, तो खुशी होती है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करनी पड़ी, मक्का वालों ने सताया, रुलाया, तड़पाया, और जब हिजरत करनी पड़ी तो हिजरत के वक्त जो है खाने काबा की तरफ दीवार को देख करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अय खाने काबा, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है, लेकिन तेरे फर्जंद अब यहाँ मुझको रहने नहीं देते, तेरी पाकीज़गी का आवाज़ तक कहने नहीं देते। तो वतन से मोहब्बत ये फितरी चीज़ है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी जो सही बुखारी के शारे हैं कि प्यारे रसूल जब देखते मदीने को तो ज़रा जानवर को दौड़ाते थे। इसकी तशरीह में कहते, इस हदीस की तशरीह में कि इससे पता चलता है कि मदीने की अजमत क्या है और अपने वतन से आदमी को मोहब्बत कितनी होती है इसका एहसास होता है। तो वतन की मोहब्बत कोई मुसीबत नहीं कि मैं तकरीर करूं कि वतन से मोहब्बत ना करो। वतन से मोहब्बत हम करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन ओवर बन करके हमें उसका इजहार करने की जरूरत नहीं है कि इस्लामियात से हट करके इस्लामी कवानीन को बालाए ताक रख करके हम हुब्बुल वतनी में इतने आगे बढ़ जाएं कि बसा औकात हम हुब्बुल वतनी साबित भी ना कर पाएं और आगे चल करके मुशरिक भी बन जाएं। तो इससे हमें डरना चाहिए और घबराना चाहिए मेरे भाई। और आप देख लीजिए जो वतन में रहने वाले लोग होते हैं, मैंने क्या बता दिया कि वतन के वतन दो तरह के होते हैं, एक दारुल कुफ्र, दारुल ईमान। दारुल ईमान का मैंने हटा दिया, दारुल कुफ्र का मैंने बता दिया कि दारुल कुफ्र में भी आदमी को रहना चाहिए मोहब्बत के साथ। लेकिन दारुल कुफ्र में रहने वाले लोग दो किस्म के होते हैं अहले ईमान को छोड़ करके। अगर वहां दारुल कुफ्र में अहले ईमान है तो अहले ईमान तो ईमान वाले हैं, उसके अलावा दो किस्म के लोग होते हैं दारुल कुफ्र में। ये कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया है। एक किस्म उन लोगों की है जो इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनियां नहीं रखते, इस्लाम और मुसलमानों से चिढ़ते नहीं हैं। एक किस्म उन लोगों की है जो मुसलमानों से नफरत रखते हैं, मुसलमानों को आए दिन कहते हैं देशभक्ति साबित करो वरना देशद्रोही का मुकदमा चलेगा, और चला भी देते हैं। मुसलमानों को रुलाते, तड़पाते हैं, सताते हैं, मुसलमानों को आए दिन वतन से भगाने की कोशिश करते हैं, और जो वतन के भगाने वाले लोग हैं उनकी ताईद और उनकी नुसरत करते हैं, उनके मुआविन बन जाते हैं। एक किस्म उन लोगों की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर दोनों का तज़किरा फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के ताल्लुक से जो दारुल कुफ्र में जिंदगी गुजारते हैं लेकिन जो आपके मद्दे मुकाबिल हैं, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई या कोई और जो भी जिस भी मजहब का मानने वाला है, वो आपको सताता नहीं है। ना ये कहता भागो भागो पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, हमारा क्या लेना देना पाकिस्तान से, हमारा बांग्लादेश से क्या लेना देना, हम जहाँ हैं वहाँ हैं। हमने तो कभी नहीं कहा हम वहाँ जाना चाहते, वहाँ जाना चाहते हैं। हम सिर्फ जाना एक जगह जाना चाहते हो, हम खाने काबा है वहाँ का तवाफ करना चाहते, उसके अलावा कहीं किसी मुल्क में नहीं जाना चाहते। हमें इस मुल्क से मोहब्बत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, ला यहकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से मना नहीं फरमाता है जो लोग दीन के बारे में तुमसे लड़ते नहीं हैं, यानी ये नहीं कहते हैं बैक टू होम, ये वाले हैं नहीं। तो इंडिया में बहुत अक्सर लोगों की अभी तादाद ऐसी है, वो ये नहीं चाहते कि तमाम के तमाम मुसलमान हिंदू बन जाए, नहीं चाहते, अक्सरियत नहीं चाहती, जो जिस पर है उस पर रहे। तो जो लोग आपको आपके दीन के ताल्लुक से झगड़ा नहीं करते हैं, वलम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हारे घरों से निकालते नहीं हैं, अन तबर्रूहुम, कि उनके साथ तुम भलाई के साथ रहो, व तुक़सितू इलैहिम, इंसाफ का रवैया बरतते हुए उनके साथ जिंदगी गुजारो, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला यकीनन इंसाफ करने वाले से मोहब्बत करता है। क्या पता चला कि हमारे वतन में, वतन अजीज में
उन लोगों की एक लंबी तादाद है जो मुसलमानों से चिढ़ते नहीं है, कुड़ते नहीं है, भगाते नहीं है, जमीन जायदाद पर कब्जा जमाने की फिराक में नहीं है, पाकिस्तान भगाने के दावेदार नहीं, भागो भागो यहाँ से जाओ। उन लोगों से आप मोहब्बत के साथ रहें, आराम और इज्जत के साथ रहें, इंसाफ का रवैया बर्ताव करें, बेहतरीन अंदाज में उनके साथ जिंदगी गुजारें। अल्लाह इससे मना नहीं फरमाता, वैसे बल्कि ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। एक तो इन लोगों की हुई, दूसरे वो लोग वो हैं जो इसके बरखिलाफ हैं। आए दिन कहते हैं देशभक्ति साबित करो, हर घर में झंडा लहराओ, इससे देशभक्ति साबित हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ हाँ, इजहार का एक तरीका है, लेकिन गारंटी नहीं है इसमें गारंटी नहीं है। इसलिए गारंटी वाला काम करो, दिल में रखो, दिल से मोहब्बत करो, और जब दिल से करोगे तो इंशाअल्लाह इजहार भी आपका अच्छा होगा। ऑटोमेटिक तौर पर अगर आपके दिल में मोहब्बत होगी ना, तो कहीं ना कहीं से हुब्बुल वतनी का इजहार हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपके दिल में नहीं है तो सबसे बड़ा वाला झंडा लगाओगे, लेकिन दिल में अगर नहीं तो सबसे बड़ा वाला झंडा लगाओगे, ले आओगे 5-7 मीटर का झंडा और लगा दोगे, लहरा दोगे, 5वीं मंजिल पर लहरा रहा है। लेकिन अगर आपके दिल में मोहब्बत नहीं तो बेकार है मेरे भाई। तो दिल में मोहब्बत, तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक किस्म उन लोगों की है जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, इस्लामी कवानीन से चिढ़ते हैं, आए दिन चेंज करने की कोशिश करते हैं, और आए दिन बदलने की फिराक में हैं, और आए दिन चेंज करने के लिए उभारते भी रहते हैं कि ये कानून बदलो, ये कानून बदलो। दुनिया के तमाम मसाइल में चेंजिंग हो गई और इस्लाम तो भी वही पुराना वाला चल रहा है। जमाने के हिसाब से भी कुछ चेंजिंग होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना कातलूकुम फिद्दीन व अखरजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इखराजिकुम अन तवल्लहुम व मन यतवल्लहुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ये बड़ी जबरदस्त सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 8 और 9 है, जाके देख लेना। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत करने के लिए कहा, इंसाफ के साथ रहने के लिए कहा। हाँ, उन अल्लाह तबारक व तआला मना फरमाता है, ये देख लीजिए आप, इन्नमा, या अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रोकता है। किन लोगों से रोकता है भाई? उन लोगों से रोकता है जो दीन के बारे में तुमसे लड़ते हैं। मुसलमान बन करके रहोगे, काट दिए जाओगे। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, नारा लगा, और उसके बाद भागो मुल्ला पाकिस्तान नारा लगा रहे हैं। ये वाले भी हैं। इन वालों से तो मोहब्बत करनी ही नहीं है, किसी सूरत से, किसी सूरत से नहीं करनी है। इन्नमा यनहाकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से मना फरमाता है जो लोग तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में लड़ते हैं। कातलूकुम फिद्दीन व अखरजूकुम मिन दियारिकुम, तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालने की फिराक में है। वज़ाहरू अला इखराजिकुम, और जो लोग, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद तो डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन ऐसी पार्टी उनकी है जो मुसलमानों का वोट भी ले रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो जो निकालने वाले हैं देश से, जिनका प्लान है, अंदर से उनका साथ देने वाले हैं, उनसे भी आपको मोहब्बत नहीं करनी है, उनके साथ भी अच्छे से नहीं रखना। अल्लाह सिर्फ ऐसे नहीं कि जो डायरेक्ट निकाल रहा है उससे तो नफरत करो, और जो इनडायरेक्ट उसका साथ दे रहा है उससे आप मोहब्बत करो, ऐसा नहीं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर मुसलमानों को उनके मुल्क से, उनके वतन से और उनकी जमीन प्रॉपर्टी से बेदखल करना कोई चाहता है, तो इन्नमा यनहाकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से मना फरमाता है अन तवल्लहुम, कि तुम लोग उनसे मोहब्बत करो, कि तुम लोग उनसे विलायत रखो। वो मन यतवल्लहुम, जबरदस्त, कितनी खतरनाक बात है। जो ऐसे लोगों से मोहब्बत करेगा फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो शख्स जालिम है। दोनों बातें खुल करके सामने आ गई कि वतन अजीज में दो तरह के लोग हैं, एक मुसलमान और इस्लाम से ना चिढ़ने वाले, एक इस्लाम और मुसलमानों से चिढ़ने वाले। जो ना चिढ़ने वाले हैं हम कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ रहेंगे, लेकिन जो मुसलमानों से चिढ़ने और कुड़ने वाले हैं और आए दिल खुराफात मचाते हैं, हमारा उनसे कोई समझौता नहीं है। आपके लिए आपका मजहब, लेकिन मेरे भाई ये कंप्रोमाइज, इस तरह का कंप्रोमाइज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहद मुबारक में आ गए कुफार, आए अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के सिर्फ बड़ा खुराफात हो रहा है, बड़ा इख्तलाफ है। मुसलमान एक तरफ, हम एक तरफ, वो एक तरफ, अलग अलग कौम कबीले में बटे हुए हैं, अलग अलग जा रहे हैं। ऐसा कीजिए हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। क्या एक थोड़ा सा आप झुक जाइए, थोड़ा हम झुक जाते हैं। हम अपने वालों को मना लेंगे, कुछ दिन आपके अल्लाह की इबादत करवा देंगे, और आप अपने मुसलमानों को थोड़ा सा समझा दीजिए कि हमारी
जो ये देवी देवता है इनके कुछ दिन पूजा कर ले, इबादत कर ले, ये वाला कर लो, तो हमारा और आपका बड़ा बेहतरीन समझौता हो जाएगा और अच्छे तरीके से हमारा मुल्क तरक्की करेगा, बेहतरीन से रहेंगे। सब कुछ उन्होंने समझाया, जो समझा सकते थे अपनी भाषा में उन्होंने समझाया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक सूरतुल काफिरून नाज़िल हुई, सारे लोगों को याद है, ऊपर से नीचे तक, मर्द औरत जवान बुजुर्ग सबको। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ओ काफिरों, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता, जिनकी मैं इबादत करता हूं उनकी तुम नहीं कर सकते हो। बाद में फिर क्या आया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है, हमारे लिए हमारा है। ये मुल्क जो है इस पर कंप्रोमाइज है कि इस मुल्क में जितने हमारा संविधान है उसमें कंप्रोमाइज इसी तरह की चीजें हैं कि जितने भी जिस भी मजहब का जो मानने वाला है अपने मजहब का एडवर्टाइज कर सकता है, मजहब का इश्तिहार कर सकता है, मजहब पर आज़ादी के साथ अमल कर सकता है। अब ये अलग बात है जिसकी जब हुकूमत होती है तो अगर ज्यादा सख्त है, तशद्दुद पसंद हैं, तासुब वाले हैं, तो दांव पेच लगा करके कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकाल करके रुलाते तड़पाते हैं। लेकिन संविधान इस्लाम पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी देता है। इसलिए मेरे भाई, हमको और आपको इस मुल्क से मोहब्बत करने के साथ साथ मुल्क वालों से भी मोहब्बत करनी है, लेकिन मुल्क वालों में से उन लोगों से हमें मोहब्बत करनी है, उन लोगों के साथ अच्छे ढंग से रवैया और अच्छे ढंग से हमें रहना है, अच्छे बर्ताव के साथ रहना है, जो मुल्क की तरक्की के ख्वाह है, जो मुल्क की तामीर के ख्वाह है, जो लोग तशद्दुद पसंद नहीं है, जो लोग किसी की जान लेने के तरपे नहीं है, या जो लोग इस्लाम और मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं, जो लोग मुसलमानों से आए दिन देशभक्ति साबित करने के लिए ख्वाह नहीं है, उन लोगों से आप अच्छे ढंग से रहिए। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत है, बहुत है। अभी इतने सारे नफरत फैलाने के बावजूद अभी नफरतियों की तादाद कम ही है। हम लोग भी चलते हैं मार्केट में, रास्ते में चलते हैं, हर जगह देखते हैं, वोट तो दे देंगे लेकिन अभी नफरतियों की तादाद बढ़ नहीं पाई है, नफरती कम ही है। इसलिए मेरे भाई इसको आप अपने जहन में रखें। और मैं एक चीज बता रहा हूं, वक्त पूरा हो रहा है लेकिन एक चीज और बता दूं कि जब पूछा जाता है, घुमा घुमा करके मीडिया वाले सवाल करते हैं, ओ भाई आप इस्लाम पर अमल करोगे या संविधान पर, आपके नजदीक संविधान पहले है या इस्लाम? अब वो मौलवी उसका दिमाग चकराता है और जो सामने बैठा वो जवाब दे तो क्या दे यार। संविधान बोले तो इस्लाम गया, इस्लाम बोले तो वही तो चाहते कि इस्लाम बोलो हम फंसाएं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले तो खुल करके बता दूं कि इस्लाम भक्त बन जाओ कि देशभक्ति कूट कूट के भर जाएगी। आप चाहे लंबा जवाब बना करके देना पड़े कि मेरे भाई, एक तो हमारा संविधान इस्लाम पर अमल करने की इजाजत देता है, दूसरे ये कि हमारा इस्लाम अपने वतन से मोहब्बत करने के लिए कहीं मना नहीं करता है, बल्कि वतन और अहले वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। हमारा इस्लाम उभारता है कि ऐसे लोगों से मोहब्बत कीजिए और रहिए अपने वतन में, बल्कि यहाँ तक है कि अपने मुल्क, अपने माल के दिफा में अगर मारा जाए, अगर हमारे माल पर कोई कब्जा जमाएगा, कोई दूसरे मुल्क वाला कब्जा जमाएगा। देखिए ये जो हुदूद है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नेपाल, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाकिस्तान, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बांग्लादेश, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अफगानिस्तान, यहाँ से लेकर के सऊदीया, यहाँ से लेकर के ये फला मुल्क, ये हुदूद बंदी किसकी है भाई? हमारी है ना। और अल्लाह ने पहले बता दिया है कि ये जो हुदूद है, जो जात बिरादरियां हैं, जो मुल्क हैं, या जो भी हुदूद है, वो सिर्फ इसलिए है लितारफू, आपस में पहचान सके फला मुल्क वाला है, ये फला खानदान का है, ये फला कबीले का है। अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर हो जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो जितना परहेजगार होगा। तो उनसे ये कहिए कि संविधान मुकम्मल इजाजत देता है इस्लाम पर अमल करने की, और इस्लाम पर जितने अमल करने वाले, कोई ऐसा हो भी नहीं सकता, एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिलने वाला होगा। मेरे भाई, उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा दिया था और उलमाए किराम की लाशों को लटका दिया गया था, उल्टा दरख्तों पर लटका दिया गया था। समझ गए? जैसे जानवरों को लटका दिया जाता है, ऐसे उलमाए किराम की लाशों को लटका दिया गया था। तो अब क्यों हमारे पीछे पड़े हो कि देशभक्ति साबित करें? तो आपके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर कहीं इस तरह की बात आ जाए और जवाब देना ही पड़े कि नहीं इस्लाम या संविधान, इस्लाम पहले संविधान बाद में। इस्लाम है, हम पहले मुसलमान है, बाद में हम दूसरे मुल्क वाले हैं। पहले इस्लाम भक्ति, देशभक्ति बाद में। कुछ लोगों को चुभेगा कि यार ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ वो सही बात यही है। इस्लाम भक्ति पहले है, देशभक्ति बाद में है।
मुसलमान पहले बनना है, और अगर मुसलमान बन जाओगे तो देशभक्ति आपके दिलो दिमाग में कूट कूट करके बढ़ जाएगी। इसलिए इसको आप अपने जहन में रखें। मोमिन बन जाए, मुसलमान बन जाए, और इस्लाम का माना ही होता है अमन शांति। जब अमन शांति होगा तो मोहब्बत, और मोहब्बत जब होगी तो अमन सलामती होगी। कहीं कोई तसादुम खुरेजी और कहीं कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई इस तरह का मामला ही नहीं आएगा। तो इस बात को अपने जहन में रखें, और बरमला अगर जरूरत पड़े तो हम कह सकें कि इस्लाम भाई साहब इस्लाम है इस्लाम, लेकिन मुल्क के खिलाफ एक चीज बता दो, इस्लाम मुल्क के खिलाफ करने के लिए कह रहा हो। एक चीज बतलाओ, क्यों कहलवाने पर अड़े हुए हो कि इस्लाम या मुल्क? हमारा इस्लाम भी, हमारा मुल्क भी है। जो मुसलमान होगा वो मुल्क से मोहब्बत करेगा, लेकिन मुल्क से मोहब्बत करने वाला इस्लाम को भी फॉलो करता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सारी चीजों का निचोड़ ये है कि इस्लाम और इस्लामियात को हम समझें, कुरान और कुरानियात को हम समझें, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरामीन को हम समझें, और हिकमत और मसलहत के पेश नजर जब जिस तरह की इजहार की जरूरत पड़ जाए तो हम और आप बढ़ चढ़ कर के इजहार भी करें, लेकिन हम इस हद तक इजहार करने पर ना अड़ जाएं, और इस हद तक इजहार करने पर ना डटें, और इस हद तक इजहार ना करें कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम हमसे छूट जाए और देशभक्ति में हम आगे बढ़ करके मुशरिक बन जाए। इसलिए इसको जहन में रखें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुनने और समझने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में अमन व सलामती, बल्कि प्यारे रसूल ने अमन सलामती के लिए दुआ किया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफिया। अल्लाह तबारक व तआला से अफ़्व आफियत का सवाल किया करो, अल्लाह मेरे मुल्क में अमन सलामती कायम रख, ये आपको दुआ करनी चाहिए। और अमन मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में अमन सलामती के लिए हमको और आपको दुआ करना चाहिए। ये मुसलमान का काम है, मुसलमान का सेवा है, मुसलमान का वतीरा होना चाहिए कि पूरी कायनात में अमन सलामती के लिए दुआ की। सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक के लिए दुआ करना चाहिए। जब दुनिया के तमाम ममालिक में अमन सलामती होगी तो दुनिया मुकम्मल की मुकम्मल तरक्की याफ्ता होगी, दुनिया तरक्की करेगी। और किसी एक मुल्क में अगर मामला देखिए, यहाँ बसा औकात आपको रिपोर्ट, भैया ये प्याज क्यों महंगा, ये फला चीज क्यों महंगा, क्योंकि बॉर्डर पर नहीं आ रहा, यानी उस मुल्क में तसादुम है तो आपकी चीजें महंगी हो गई, फर्क पड़ रहा है। तो जब पूरी दुनिया में अमन सलामती होगी तो इंशाअल्लाह हम और आप भी खुशहाल रहेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।